नमो लोये सौहरिहन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौआयर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाताय। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં 8 કળશ એટલે સળંગ 200 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. આજે 9મો કળશ એટલે સળંગ કળશ 201 નો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. 201 કળશ પૂજ્ય ગુરુદેવે ગાથા વાંચનમાં લીધી છે. આજે એનો વિસ્તાર શરૂ કરશે. આપણે સમયસારમાં જોઈએ તો કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 324, 325, 326 અને 327 એ 4 ગાથા પછીથી કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાનની આ 4 ગાથા ઉપર અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને ટીકા લખ્યા પછીથી આ કળશની રચના કરી છે. એટલે એ જ અર્થનું કળશરૂપ કાવ્ય છે એમ ત્યાં કહ્યું છે. તો આપણે જરાક એનો ભાવાર્થ જોઈએ એ 4 ગાથાઓનો. તો 4 ગાથાઓના ભાવાર્થમાં અહીંયા કહે છે કે જે વ્યવહારથી મોહી થઈને પરદ્રવ્યનું કરતાપણું માને છે તે લૌકિક જન હો કે મુનિજન હો, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ છે. વ્યવહારથી મોહી થઈને પરદ્રવ્યનું કરતાપણું માને છે તે લૌકિક જન હો કે મુનિજન હો, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ છે. જ્ઞાની પણ જો વ્યવહાર મૂંઢ થઈને પરદ્રવ્યને મારું માને તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ થાય છે. હવે આ પછીથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને આ અર્થનું કળશરૂપ કાવ્ય એટલે કે કળશ 201 લખ્યો છે. એના શ્લોકાર્થમાં અહીંયા કહે છે કે કારણ કે આ લોકમાં એક વસ્તુનો અન્ય વસ્તુની સાથે સઘળોય સંબંધ, એક વસ્તુનો અન્ય વસ્તુ એટલે બીજી વસ્તુ સાથે સઘળો એટલે બધો જ સંબંધ જ નિષેધવામાં આવ્યો છે. તેથી જ્યાં વસ્તુ ભેદ અર્થાત ભિન્ન વસ્તુઓ છે ત્યાં કર્તા કર્મ ઘટના હોતી નથી. બે જુદી વસ્તુ વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ હોતો નથી. એમ મુનિજનો અને લૌકિક જનો તત્વને, વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપને અકર્તા દેખો. એમ તમે અકર્તા જુઓ, એમ અકર્તા શ્રદ્ધો. શું શ્રદ્ધા કરવાની? કર્તા કર્મ ઘટના, કર્તા કર્મ એવો સંબંધ બે ભિન્ન વસ્તુ વચ્ચે હોતો નથી. કોઈ કોઈનું કરતા નથી, પરદ્રવ્ય પરનું કરતા નથી, અકર્તા જ છે. એટલે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરતા નથી. સૌ પોતપોતાના કરતા છે એવું વસ્તુ સ્વરૂપ છે. એટલે એમ શ્રદ્ધામાં લાવો. કળશ અમૃતની અંદર પંડિત રાજમલજીએ ખંડાન્વય સહિત અર્થમાં એમ કહ્યું કે તે કારણથી જીવ દ્રવ્ય ચેતન સ્વરૂપ, ઉદ્ગળ દ્રવ્ય અચેતન સ્વરૂપ એવો ભેદ અનુભવતા જીવ દ્રવ્ય કરતા ઉદ્ગળ પિંડ કર્મ એવો વ્યવહાર સર્વથા નથી. ચેતન એવું જીવ દ્રવ્ય અને અચેતન એવું પૂતગળ દ્રવ્ય એ બેની વચ્ચે જીવ દ્રવ્ય
કરતા થાય અને પૂતગળ પરમાણુનો પિંડ એટલે કે કારણ રજકણો જે છે એ બંધાય એટલે એનું કર્મ થાય, એનું કાર્ય થાય, એવો વ્યવહાર સર્વથા નથી. તો કેવો છે? સમ્યક દ્રષ્ટિ છે જે જીવો તે જીવ સ્વરૂપને કરતા નથી એવું અનુભવો, આસ્વાદો. શા કારણથી? કારણ કે શુદ્ધ જીવ દ્રવ્યનું પૂતગળ સાથે દ્રવ્યરૂપ, ગુણરૂપ અથવા પર્યાયરૂપ એકત્વપણું નથી. શુદ્ધ જીવ દ્રવ્ય ચેતન અને પૂતગળ દ્રવ્ય એ અચેતન જડ. તો શુદ્ધ જીવ દ્રવ્યનું પૂતગળ દ્રવ્ય સાથે દ્રવ્યરૂપ, ગુણરૂપ અથવા પર્યાયરૂપ એકત્વપણું અતીત, અનાગત, વર્તમાન કાળમાં વર્જ્યું છે. એટલે ભૂતકાળમાં પણ હતું નહીં, અનાગત ભવિષ્યકાળમાં પણ નહીં અને વર્તમાનમાં પણ નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે અનાદિ નિધન જે દ્રવ્ય જેવું છે તે તેવું જ છે. દરેક દ્રવ્ય જેવું છે તેવું જ છે અને તેવું જ રહ્યું છે, એવું જ એનું અસ્તિત્વ જળવાઈ રહ્યું છે. એને કોઈ બીજા અન્ય દ્રવ્યના ગુણ કે પર્યાય કે કાંઈ પણ એને મેળવ્યું નથી, ભેળવ્યું નથી, ઉમેર્યું નથી. કે પોતાના જે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની અંદર કોઈ એણે ફેરફાર કર્યો નથી. એના જ દ્રવ્ય ગુણ અને એના જ પર્યાય છે, અન્યના ને એણે ભેળવ્યા કર્યા નથી. એટલે એવું જ વસ્તુ સ્વરૂપ અનંત કાળથી જળવાઈ રહ્યું છે. કોઈ દ્રવ્ય ફેરવાઈને બીજા દ્રવ્યરૂપ ક્યારેય થયું નથી, થશે નહીં અને અત્યારે વર્તમાન કાળમાં પણ થતું નથી. એટલે કે છે કે ભાવાર્થ આમ છે કે અનાદિ નિધન જે દ્રવ્ય જેવું છે તેવું જ છે, અન્ય દ્રવ્ય સાથે મળતું નથી. તેથી જીવ દ્રવ્ય પૂતગળ કર્મનું અકર્તા છે, પૂતગળ કર્મનું કરતા નથી. એ રીતે 201મો કળશ છે. એની પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 6, પાના નંબર 184, પ્રવચન નંબર 224 પહેલેથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે. कलश टीका 201 कलश. कलश बोला ही गया है, कलश शब्दार्थ होता है तद वस्तु में से कर्तुकर्म घटना न अस्ति. क्या कहते हैं? जिस कारण से जीव द्रव्य जीव वस्तु है वो चैतन वस्तु है. जानक स्वभाव से भरा पड़ा चैतन है. જેમ शक्कर मिठास से भरी है, अफीण कड़वाश से भरा है, ऐसा भगवान आत्मा जीव द्रव्य ये चैतन स्वभाव से भरा है, चैतन स्वभाव है. विनायक जानन देखन ऐसा त्रिकाली युद्ध का विनायक ध्रुव स्वभाव ये चैतन और पुद्गल चेतन. અને કર્મ है, कर्म अंदर जड़, बात जड़ नहीं लेना है. शुभ अशुभ भाव करते हैं ना, तो पुण्य पाप का रजकणों कर्म में कर्म पर्याय होकर होती है. ये कर्म है ये अचेतन है, शरीर अचेतन है, वाणी अचेतन है. तो कहते हैं कि चेतन और अचेतन ऐसा स्वरूप भेद के अनुभवते हुए क्या कहते हैं? दो का पृथकपणा का भेद का अनुभव करते हुए वे भिन्न है, तो दो भिन्न है ऐसा अनुभव करते हुए हाँ जीव द्रव्य कर्ता और पुद्गल पिंड कर्म ऐसा व्यवहार सर्वथा नहीं है. हाँ जीव करता है व्यवहार ये खुद जुटो से एम के साइटो
એવું છે ભગવાન। ये वस्तु एक है, उससे दूसरी वस्तु का प्रभाव है, और दूसरी वस्तु में आत्मा का भी अभाव है। तो अभाव में दूसरी चीज का कर्ता कैसे हो सकता है? समझ में आया? सूक्ष्म विषय। हाँ डॉक्टर છે મોટા, છે ડોક્ટર हेमोपैथी भावनगर थे आया है। अरे भगवान आए तो कैसे समय सार में एक आया है नाटक में, मुंड कर्म को करता होवे, फल या विलास धरे फल जोवे, ज्ञानी क्रिया करे फल सुनी, लगे न लेप निर्जरा दुनी। हाँ क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या? मूंड कर्म को मैं करता हूँ, शरीर की क्रिया, और जड़ कर्म है माटी अंदर, उसको मैं करता हूँ। वाणी ये मैं करता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ, और मैं दूसरा को पैसा लक्ष्मी दे सकता हूँ। हाँ हाँ, ये मूंड जी कर्म नामी कार्य को करता होता है। मूंड कर्म को करता हुए फल अभिलाष न रहे। मैं उसका काम किया तो उसका फल मिले, कुछ मिलेगा। दूर है तो काम कर सकते नहीं, फिर क्या से मिलेगा? વસ્તુની સ્થિતિ માટે છે, કરુણા का शब्द है। कोई व्यक्ति प्रति तो प्रेम है, सब आत्मा भगवान है। समझ में आया कैसे? पीछे अरे खेद से कही थी हम कैसे, अरे प्रभु तुम आत्मा तो न नाथ, तेरी चीज में दूसरी चीज का तो अभाव है न, और दूसरी चीज में तेरा अभाव है, तो अभाव में है तुम दूसरा का करता भाव रूप कैसे होता है? सूक्ष्म बात है भगवान। हाँ तो कहते हैं यहाँ तो शरीर कर्म है, नजीक की उसकी बात है, तुम न समझाई थे। शरीर वाणी की बात तो लिया ही नहीं। यहाँ तो जितना राग द्वेष है आत्मा में पुण्य पाप, इतना कर्म की पर्याय में वर्गणा रजकण की है, वो कर्म रूप पर्याय रूपे होती है, तो उसका भी कर्ता आत्मा नहीं। राग का राग करे ज्ञानी, दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव राग है, उसको करता हो अज्ञानी। क्योंकि स्वरूप में तो राग है नहीं, स्वरूप तो ज्ञान आनंद सच्चिदानंद प्रभु है। तो ये शुद्ध चैतन्य स्वभाव कायमी असली चीज, ये तो दयादान व्रत विकल्प उठते हैं, उसका भी करता नहीं। छते अज्ञानी उसका करता हो मानो, पर छता राग का करता मानते पर भी नई कर्म की रजकण की अवस्था बनती है, उसका तो तुम व्यवहार ही करता नहीं। सूक्ष्म है भाई, तो विज्ञान नो विज्ञान सूक्ष्म है। डॉक्टर ने बारो मोड़े 1 कलाक खाओ, ठीक है। होम्योपैथी। यहाँ कहते हैं कि एक चीज या आत्मा है चैतन्य, हमने अंदर कर्म आ धूल पड़ी है ना अंदर, पुण्य का रचकन पड़े हो ना अंदर, तो उसका उदय आते हैं। तो बुद्धि विना ना मानस हो तो उसको भी 5-5 लाख पैदा करते हैं, नहीं तो दिखाए कि नहीं। बुद्धि का बारदान समझे, उसमें बारदान हम खाली खोखा, बुद्धि विना ना हो तो अपन 5-5 लाख महीने पैदा करते हैं। छेक नहीं बराबर, छेक नहीं तुम्हारा નથી ભાઈ, અહીં મલુકચંદ ભાઈ નથી, મલુકચંદ ભાઈ દીકરો,
5 करोड़ 6 करोड़ રૂપિયા મુંબઈ અમારે ક્યાં લાગે છે ખુરશી બેસતા મલુકચંદભાઈ છે બુદ્ધિ કેવી છે બધી ખબર છે અમને પણ પેલા મોટી 5-6 કરોડ રૂપિયા મહિને પેદાશ એક મહિનાની કેટલી એક દિવસની 10,000 15,000 નીકળાય पैदाश समझते हैं आमदनी लोग को भाषा बराबर तो उसमें क्या है कोई बुद्धि से भी तो पूर्व का परमाणु स्वभाव कोई हुआ हो तो स्वभाव तो एकंदर में भी होता है उसमें कोई नवी चीज नहीं ते स्वभाव हो तो पुनर्रचकन बन गया हो और पुनर्रचकन का पाठ होकर जरा खिरने की तैयारी हो तो नया संयोग में लक्ष्मी आदि दिखे वो कोई उसका प्रयत्न का फल वर्तमान पर लक्ष्मी है ऐसा है नहीं सेठ जो या तो आप सेठ या करोड़पति है वस्तु नहीं स्थिति तो ऐसी है ना भगवान ने आंख मानो कि बाहर मानो वस्तु तो ऐसी है यहाँ तो कहते हैं जरी सूक्ष्म की बात है कि अंतरना परमाणु जो रजकण है आप फोटा पाड़ते हैं कि नहीं भैया आप फोटा पाड़ने मारा तो सामे फोटा पाड़ते हैं तो सामे से रजकण आता है यहाँ समझो पहले जो फोटा पाड़ते हैं ना तो यहाँ फोटा पड़ता है बराबर यहाँ से रजकण आता है यहाँ रजकण है ये अपनी पर्याय से परिणमते हैं एमा तो सामो तो निमित्त है पर निमित्त से यहाँ कुछ हुआ ऐसा नहीं सामे से फोटा पाड़ते हैं अमेरिका में सिंह होता है 200 सिंह जंगल में अफ्रीका में जंगल में तो उसको फिल्म वाला लेने को जाते हैं 5-5 लाख की मोटर लोढ़ा हरिया इतने सिंह आवे तो अंदर न तोड़ी सके तो हम बसे सिंहों ने फूटा पाड़े जो त्या से रजकण आता उसका रजकण सुखाई जाए शरीर सुखाई जाए उसका जीनी बात है भगवान ये यहाँ फूटा पड़ते हैं यहाँ रजकण है यहाँ परमाणु भरेला त्या अंदर ये परमाणु में ये रीते परिणमन होकर फूटा पड़ते हैं ये स्वामी चीज में से रजकण आता नहीं समझ में आया एम आ तो दृष्टांत हुआ एम आत्मा जયારે पुण्य ने पाप का भाव करते हैं शुभ भाव दया दान व्रत भक्ति का भाव ये वक्त सामे त्या रजकण है पुण्य रूपे प्रण जाते हैं ये आने पुण्य शुभ भाव किया तो त्या पुण्य रूपे प्रण न हुआ ऐसा है नहीं आ बात एवी से प्रभु शू करी समझ में आया आप फोटा क्या पढ़ते हैं रजकण का ये रजकण के कारण आईने के कारण नहीं आ बात क्या माने पागल जी भी बात है डॉक्टर मैं तो एक बार अभी कहा था क्या जमीन है ना जमीन चलते हैं ना तो जमीन को छूते भी नहीं पग सूक्ष्म बात है बहुत विज्ञान का विज्ञान सूक्ष्म है वो जमीन को छूते नहीं पग चलते हैं क्यों कि पग का रजकण भिन्न है एक का रजकण भिन्न है तो एक दूसरे में अभाव है तो छूते हैं ऐसा बन सकते नहीं सूक्ष्म बात है भगवान हाँ तो कोई को दृष्टांत देते हो बात तो बात बहुत बड़ी है हाँ समझ में आया अस्थि है तत्व जो अस्थि है अने दूसरी भी एक चीज है तो है ये है अपने से ही परिणमन करती है पलटता है पर से पलटे तो पोते पलटने को पर्याय बिना न रहा प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखकर वर्तमान में पलटता होता है ये पलटना होना पर के काम से है ऐसा तीन काल में है नहीं सूक्ष्म है भगवान विज्ञान का विज्ञान जो लोग को करते हैं इसका तो सर्वज्ञ का विज्ञान है यहाँ जितना स्वभाव करे अज्ञानी तो इतना प्रमाण में क्या परमाणु साता पड़े पुण्य परमात्मा में परिणमते हैं तो वो राग उसका करता है अने कर्म की पर्याय हुई उसका कार्य है ऐसा है नहीं
આવી વાત હવે નિશાળમાં મળે નહીં, ડાક્ટરમાં મળે નહીં, ક્યાંય વેપારીમાં મળે નહીં. આ શેઠ મોટા ગયા ક્યાંય शेख सागर में बात तुम्हारे सागर में बात है. हाँ सागर में ये बात है क्या? प्रभु है तो ये कहते हैं, देखो चैतन वस्तु या अचेतन की पर्याय का कर्ता कैसे हो, यूं कहते हैं. समझ में आया? भाषा जो होती है ત્યાં का रजकण परमाणु में शब्द वर्गणा, शब्द की वर्गणा नाम परमाणु का समूह, उसमें वो समय में शब्द होने की पर्याय का स्वकाल है तो शब्द होता है. आत्मा से होता है ना, दो होठ से भी शब्द होता है, ऐसा है नहीं है. जीभ थी तो था ही ना. धूल में जीभ थी था ही नहीं. जीभ तो मैं नाम न लिया बोली लांबू. हाँ इतना सीखिया. हाँ 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 प्रभु बात सुन करिए. वस्तु भिन्न भिन्न, भिन्न चीज का भिन्न करता हो जाए तो भिन्न चीज रह सकती नहीं. अनंत तत्व है, आत्माओं अनंत है न अनंत रजकणो है. जो अनंत अनंतपणे अपनी पर्याय अवस्था का करता हो तो अनंतपना रह सकते हैं. पर अनंत है उसमें से उसका आ करता उसका आ करता तो अनंत रहते नहीं. सूक्ष्म बातें हुई. यहाँ तो धर्म की बात बहुत सूक्ष्म बात, तो साधारण बातें भी तो थोड़ बात करते हैं. यहाँ कहते हैं कि भेद के अनुभव से हुई. जिसको जड़ की पर्याय ने अपनी चैतन की अवस्था, पर्याय की अवस्था, ये भिन्न भिन्न बातें हैं, ये अपने को भिन्न अनुभव करते हुए कर्तव्य घटना जीव द्रव्य करता उद्गल पिंड करता ऐसा व्यवहार सरलता नहीं है. बहुत जीणु बापू आ तो भगवान चैतन्य स्वरूप है नहीं. आत्मा में तो चैतन्य स्वभाव भरा है नहीं. ये अनादि अनंत चैतन्य स्वभाव से भरपूर भरा परिपूर्ण है. दूसरी भाषा कहिए शास्त्र भाषा थी हो तो सर्वज्ञ स्वभाव से भरा है आत्मा. सर्व शब्द न लइए, ज्ञ स्वभाव से भरा है. तो ज्ञ स्वभाव ये परिपूर्ण परिपूर्ण अखंड अभेद पड़ा है. तो ज्ञ साथे सर्व शब्द लगे लागू काढ़िए तो सर्वज्ञ स्वभाव होता जाता है. ये सर्वज्ञ स्वभाव ही आत्मा है. ये राग की कर्ता के अपनी पर्याय का कर्ता कहना जी वो भी उपचार है. निर्मल पर्याय का कर्ता कहना ये भी उपचार है. क्यों उपचार है? कि निर्मल पर्याय कार्य ने आत्मा करता ऐसा भेद पड़ गया उसमें, तो ये भी उपचार से नई परिणति का करता है. निर्मल का हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने जो परिणति अवस्था त्रिकाल के अवलंबन से होती है, छता कहते को पर्याय का कर्ता वो द्रव्य नहीं, वस्तु नहीं, वस्तु पर्याय का कर्ता. ये तो उपचार से कहने में, व्यवहार से कहने में आता है. तो पीछे राग का कर्ता हो आत्मा, अनेक जड़ की पर्याय का कर्ता आत्मा हो, ये मान्यता बड़ी मिथ्या भ्रम है, अज्ञान है. समझ में आया? तो आया नहीं? कैसा है? मुनय जना तत्व कर्तुम उपसंतो. मुनय जना આમાં અર્થ એક જ કર્યો છે, ઓલામાં બે કર્યો છે. मुनियो અને जन. जन એટલે જે કોઈ जगत का कर्ता मानता है, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, ये जन मनुष्य. અને मुनय जैन मुनि के संकेती. ये दो ही लिया, यहाँ एक लिया है, अर्थમાં दो लिया है हमेशा. मुनय जना शब्द है ना. मुनय नाम सम्यक दृष्टि जीव.
જના એટલે જીવ એમ લીધું છે. અને મૂળ સમયસારમાં જરૂર તો બેની જરૂર છે. મુનય જના, કારણ ત્યાં પાઠ ऐसा है ने कि आ करता है, ईश्वर करता है जगत का, एम मानने वाला जनो તમે ऐसा न मानो છો એમ कहते हैं. અને मुनय नाम जैन ने मानो तुम पर का करता है ऐसा न मानो, ऐसी वस्तु की स्थिति नहीं. हाँ हाँ समझ में आया. तो मुनय जना, मुनि सम्यक दृष्टि जीव, ये जीव स्वरूप को करता नहीं ऐसा अनुभवो. हाँ 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 हाँ, ये सूक्ष्म बात है. क्या तो भगवान आत्मा ये राग का भी करता नहीं, ऐसे अनुभव नाम चैतन्य जो आनंद स्वरूप भगवान है, ज्ञान ने आनंद स्वभाव है, उसके अनुसरी ने था हो. जी चैतन्य भगवान आनंद सच्चिदानंद प्रभु, उसके अनुसरी ने दो अनुभव, पर राग का अनुसरी ने राग का करता न हो. વિલાલની વાત આવી જેને બાપુ શું કહીએ, દરેકનું સ્પષ્ટીકરણ કરી શક્યા છે, પણ આ થોડું થોડું આટલું બધું કરવા જાય એકને તો લાંબુ હાલે નહીં. હા હા, વસ્તુ સ્થિતિ એવી છે, मानस आत्मा स्वतंत्र है और परमाणु भी स्वतंत्र है. एक एक परमाणु पॉइंट थता है तो आत्मा हला सकते, शरीर को हला सकते हैं. डॉक्टर पक्षघात होता है तो आत्मा तो है, ये आत्मा का क्या है नहीं. हाँ हाँ हाँ, अज्ञानी मानते हैं कि मैं ऐसा पक्ष चलाऊं, ऐसा मैं चलाऊं, ऐसा है. खाली चढ़े तो हिलाई सकते नहीं. हाँ खाली समझेगी क्या कह सकते पग में हाँ ये हाली शके नहीं, क्या खाली कहे हमारे यहाँ कहते हैं. तो पण की जड़ की दशा है भगवान. हाँ हाँ, तेरे से हुई नहीं, तेरे से रुकती नहीं, तेरे से बनती नहीं. वस्तु ऐसी आ तो सर्वज्ञ નથી. लॉजिक युक्ति थी पण स्थित થઈ શકે છે. ની ધાતુ છે न्यायમાં, नी न्याय ले जाना, देरी जाना. जैसी वस्तु की मर्यादा है ऐसा ज्ञान को ले जाना, उसका नाम न्याय कहते हैं. वो न्याय लोकोत्तर नीति है. लोकोत्तर नीति, जगत की नीति लौकिक व सज्जनता दूसरी चीज है. यहाँ कहते हैं कि लोकोत्तर नीति ऐसी है कि अपनी आत्म चीज एक कर्म अंदर ની વાત અહીં तो लिया है. जितना प्रमाणे राग द्वेष करे इतना प्रमाणे त्या कर्म की अवस्था हो, छतां कर्म की अवस्था का करता आत्मा नहीं. तो પછી नजीक में ऐसा बनते हैं उससे भी करता नहीं, तो दूर शरीर वाणी मन उसका आत्मा करता हो, हवा चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लक्ष्मी दे सकते हैं दूसरा को, मैं पैसा जिसको पैसा रख सकता हूँ. मिथ्या दृष्टि ब्रह्म है ज्ञानी का. समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई. है दिखते नहीं पण दर्शन न दिया, दिखते ने दर्शन दिया नहीं. बुद्धि साधारण हो तो 5 लाख पैदा करते हैं, क्या दिखते हैं? हमें तो बहुत अनुभव है. हमारा भाई था ना भागीदार, साधारण बुद्धि 2 लाख पैदा कर सकते. हाँ कुंवरजी भाई था ने भागीदार, पहला દીકરા. दुकान હતી ને મારી, 2 દુકાન હતી પાણીમાં. મેં 5 વર્ષ દુકાન ચલાવી, પણ છોટી ઉંમર 17 થી 22, 17 વર્ષની ઉંમરથી 22 दुकान चला. 2 दुकान है, अभी दुकान है, बड़ी दुकान है. अभी दुकान बहुत बड़ी है, 30-35 लाख रुपया है, 3-4 लाख की पैदाश है. कोई दुकान है भी है पाली भरूच में रोड तरफ. तो बब्बू हमारा भागीदार था, बुद्धि वाला क्या था हमने खबर है. શેઠ કે તમારા રામજીભાઈ મસ્કરી કરી છે કરી કોણ ભાઈ આવતા હતા ને કે કેમ તમને કેટલી વાર શેઠ કે ભાઈ? ત્યારે કે 500 વાર કે, આ કે 1000 વાર કે 500 વાર કે, આવો આપો જવાબ એ દેતા આવડે.
અને 2 લાખ પેદા કરે વર્ષના, 2 લાખ. એ વખતે 11 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયા, 12 વર્ષ પહેલા. હવે છોકરાઓ છે વધારે પેદા કરે, 3-4 લાખ પેદા કરે, 30-35 લાખ રૂપિયા છે. એ દુકાન નથી અમારી. ધૂળમાં કોઈની દુકાન નથી ને પૈસા નહીં. આવી વાતો છે. हाँ तो कहते हैं एक रजकण को भी एक आत्मा चला सके, ये 3 काल में बनતું नहीं. हाँ हाँ हाँ, आओ मारे मुने जना ऐसा अनुभवो. इसलिए क्या कहते हैं कि राग का और पर की क्रिया का करता नहीं तो तुम अकर्ता है, तो ऐसा ज्ञान स्वरूप को अनुभव. पर का करता नहीं तो पर का कर्तापना से बुद्धि उठा दे, और अकर्ता भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, त्या दृष्टि लगा दे और उसका आस्वाद ले. उसको आस्वादो, आत्मा का आनंद का स्वाद लो. राग का कर्तापना तो मिथ्यात का स्वाद, आकुलता का दुख का स्वाद है. हाँ हाँ हाँ, भारी आई बात भाई, समझ में आया. राग का न कर्म का कर्ता मानने में मिथ्या श्रद्धा का, आकुलता का, दुख का वेदन है. हाँ हाँ हाँ, આવી વાત છે. તો અહીં આચાર મહારાજ કરુણા કરીને કહેते हैं છે ને, આસ્વાદ हो. हाँ हाँ हाँ, पसंद हो. अकर तुम पसंद तो नहीं व्याख्या करी, अकर तो तुम देखो. ये अर्थांत राग અને पर की पर्याय का करता नहीं, ऐसे अकर तो देखो. ये आत्मा करता है, उसका अनुभव हो. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया. सूक्ष्म बात है भाई, हमको खबर तो है सबकी. क्या चलते आखिर दुनिया में. तो 88 वर्ष हुआ, हमारी ताकि जिंदगी 70 वर्ष ऐसे चल गई है. निवृत्ति में दुकानों पर भी हम तो निवृत्ति लेके थे, पिताजी दुकान. हाँ हाँ, लोग बहुत देखा है सारा हिंदुस्तान, बहुत धर्म की कहनारा, बोलनारा, मारनारा, संभलनारा, कई तो देखा है. हाँ हाँ मार्ग भाई, અહીંયા કે છે કરતું સંતો. હા હા હા, સંતો આનંદના વેદનનારા પ્રભુ, અતિન્દ્રિય આનંદના અનુભવીઓ. હા હા હા, અનુભવીને એટલો રે આનંદ. मोटी मेरी छोटी उम्र थी शरीर की, 10 वर्ष की, 11 70-72 वर्ष की बात, पहला 75 वर्ष का. हमारा जुड़ी पाडोशी था, पाडोशी समझे ना, पड़ोसी. तो ये हमारा ब्राह्मण था, पर हमारी माता जी का पियर था, उसका कुत्ते मामा कहते थे, मोहनजी मामा, मूलजी मामा कहते. तो ये नहाते थे जब स्नान करते तो एक में बोलते थे. हम 10 वर्ष की उम्र में बात है भाई, आ तो 78 वर्ष पहले की बात. अनुभवी ने एटलू रे आनंद मारे मुरे, भजवा परिभ्रम ने बीजू काई नो के मुरे. तो भाषा अपनी गुजराती. अनुभवी ने एटलू आ शू के मामा बोले शू, आ तो पोणो वर्ष बात એને ખબર ન મળે. ભાષા બોલે ના, એને લુગડા બદલે ને, શું કહેવાય, કપડા. કપડાનું નામ ન હોય ને, ડાબડી નાની હોય ને પેડ બોલતા હોય. આ અનુભવી કે છે હું આ અબોટિયાને એવું કરતા હોય. અનુભવીને એટલું એ અહીં કહેતા, એ પ્રભુ અકર તુમ પસંદ તને. હા 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 હા, એટલે अर्थांत शुभ शुभ राग आते हैं, उसका ऊपर तिलक छोड़ दे. तुम ये चीज तेरी नहीं, तेरे में नहीं, तू उसमें नहीं. हाँ 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 हाँ, आती कहीं बात है. शुभ राग दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है. भाव विकल्प उठते हैं, वृत्ति उठती है. ये वृत्ति राग है, उसमें तुम नहीं.
क्योंकि उसमें तुम हो तो राग छूट जाता है, तुम तो रहते हो। कहीं राग तुम एक हो तो राग नाश हो जाते हैं, तुम्हारा नाश नहीं होता, तुम अविनाशी रहते हैं। तो राग में तुम नहीं, तुम्हारा में राग नहीं, ऐसा अगर तुम पसंद हो। समझ में आया? बात तो गंभीर से प्रभु सुनता है। भगवान से बता, अंदर वो प्रभु से। अब बाहर पर्याय में भूल है अवस्था में, वस्तु तो वस्तु है। शेरडी नो रस, शेरडी समझे, गन्ना नो रस ने कूचा दो भिन्न चीज है। अंदर पीलते हैं तो रस जुदा पड़ जाए, कूचा जुदा पड़ता है। कूचा कहते हैं पंडित जी, क्या कहते हैं कूचा? हुआ शेरडी का, शेरडी गिन्ना। ऐसे है आत्म रस, आनंद रस, અને પાપ ને શરીર का कूचा भिन्न है। कूचा कहते? अगर तुम पसंद हो तो तुम परदरी का करता हो सकते नहीं, तो उसके साथ तो हम ऐसा भी कहते हैं कि तेरा राग भी तेरी चीज नहीं। जैसे परता करता हो सकते नहीं, ये तो थोड़ी बात हुई, पर अंदर में पुण्य पाप का भाव है, उसका भी खरेखर रचना करने वाला तो मानो तो अज्ञान है। अगर तुम पसंद हो, संतों की वाणी तो जो रो एक बार तुम अकर्ता है, ये शुभ शुभ भाव का भी रचने वाला नहीं, ऊपर की क्रिया भी करने वाला नहीं। एक बार पसंद हो तो देख तो खो अंदर में, अंदर आनंद कन प्रभु है, शुद्ध चिदानंद आत्मा है। समझ में आया? आस्वादो है ना, पसंद हो, अनुभवो, पसंद हो अनुभवो, पसंद हो आस्वादो। જેની વાત છે પ્રભુ, એક વાર ખ્યાલમાં તો વાત લ્યો। कहते हैं तुम एक चीज है कि नहीं, तो है तो कोई उसकी शक्ति, कोई बहुत सामर्थ्य है कि नहीं? वस्तु है तो वस्तु का कोई स्वभाव है कि नहीं? कि जो वस्तु त्रिकाली है तो उसका स्वभाव, भाववान का स्वभाव, स्वभाववान का स्वभाव, तो जम त्रिकाली स्वभाववान है ऐसा स्वभाव त्रिकाल है। उसमें ज्ञान, सच्चिदानंद, आनंद, आनंद, शांति आदि त्रिकाली स्वभाव है। तो त्रिकाली स्वभाव में दृष्टि करके, कर्ता बुद्धि छोड़ करके अकर्तापना का अनुभव करो, तो तेरी शांति मिलेगी, धर्म होगा, न जन्म मरण मिटेगा, नहीं तो जन्म मरण मिटेगा नहीं। आई बातों से समझ में आया? प्रसन्न हो गजब बात करते हैं। देखो देखो नहीं, इसलिए देखो अंदर चैतन्य मूर्ति भगवान है, उसको वर्तमान दशा में जो राग को तुम देखते हैं न कर्ता मानते हैं, तो ये छोड़ दे और तेरी वर्तमान दशा में दशावान को देख। जीराना काम से बापू आ तो कहीं कोई पंडित भणी जाए, मोटा व्याख्यान आपता आवड़े માટે ये चीज नहीं। व्याख्यान देता नहीं आवड़े तो समकिति को ज्ञानी हो, इतना सूक्ष्म न हो न पड़े समझ नहीं। समझ में आया? मान नहीं आता ही आप तो एक बार मनुष्य को मनु तेरे एक एक पौड़ जाए से प्रभु माँ चिंती जाए से, ऐसा मनुष्यपना मिलना अनंत काल मुश्किल। तो उसमें कर्तापना है, कर्तापना का
कर्तापना का अभाव, अपना अनुभूति की पर्याय का कर्तापना, ये तेरा कार्य है। समझ में आया? है किस कारण से? यत एकस्य वस्तुनम अनंतरायण साधम सकलोपी संबंधम निषिद्ध। क्या कहते हैं? एक चीज में दूसरी अन्यतरण, अन्य चीज के साथ सकलोपी संबंध, इधर ही सूक्ष्म बात है। उसमें क्या कि भगवान आत्मा और पुण्य पाप का भाव और कर्म, इस आत्मा में दो का तदात्म संबंध है ही नहीं। तदात्म संबंध એટલે જેમ અગ્નિ ને ઉષ્ણતા એ તદાત્મ સંબંધ है, साकर ने मिठास तदात्म तत्स्वरूप संबंध है। ऐसे आत्मा का और पुण्य पाप का, भाव का, कर्म का तदात्म तत्स्वरूप है नहीं। समझ में आया भाई? भाषा तो हादी से, पण भाव तो आप हलो पीछे। जैसे अग्नि ने उष्णता, ये तदात्म तत्स्वरूप है। उष्णता में अग्नि बे एक है, तदात्म संबंध है। ऐसे आत्मा में અને आत्मा का आनंद में तदात्म संबंध है, पण आत्मा ने राग ने कर्म ने तदात्म संबंध है नहीं। समझ में आया? अभी बात है इस बात भी। बहुत प्रेम से सुनते हैं बात ऐसी भगवान। क्या कहते हैं प्रभु? आओ मनुष्य को मृत्यु नहीं अनंत काले तो मनुष्य की व्याख्या खरेखर तो गोमरसार ऐसे कहते हैं, ज्ञायते इति मनुष्य, जानना आत्मा का अनुभव करना वो मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य स्वरूप मृगा चरंती, मनुष्य रूपे मृगला हरणिया है। हरण कहते मृगला को कहते नहीं, अपने हाथे मनुष्य स्वरूप मृगा चरंती, मनुष्य रूपे मृगला है हरणिया। यहाँ तो भगवान आत्मा और इसके ज्ञान और आनंद, ये आत्मा के साथ दो का तदात्म तद्रूप संबंध है। अग्नि ने उष्णता नहीं पेठे, साकर ने मिठास नहीं पेठे, सोना में स्वर्ण અને पीड़ा चिकास नहीं पेठे तदात्म संबंध है। ऐसे भगवान आत्मा में और ज्ञान में आनंद का तदात्म संबंध है, तत्स्वरूप है। राग पुण्य पाप का, भाव का, ने कर्म का, ने शरीर का आत्मा साथ है, तदात्म संबंध नहीं। समझ में आया? एक बात आलापत्ति में ये आया है, आलापत्ति है नहीं, उसमें आया है, इसमें से लिखा है नहीं, सीधी वाचता मात्र लिखा था थोड़ा। तदात्म संबंध, गुण गुणी भाव। क्या कहते हैं कि आत्मा गुणी है और राग उसका गुण है, ऐसा है नहीं। जेम साकर गुणी है, मिठास गुण है, ऐसा उसमें मैल है, एक गुणी साकर है, मैल उसका गुण है, ऐसा है नहीं। न्याय समझे, लॉजिक से तो बात तो चलती है। न्याय में नहीं था तो है, नहीं ले जाना वस्तु की स्थिति है, क्या ज्ञान को दूरी जाना अंदर। જેની વાતો છે ભાઈ એને અનંત કાળથી કર્યું ના બહાર ના હોળીમાં मैं કર્યું એમાં એક આવે છે, मैं करता मैं कि नहीं कैसी अब यो कहो कहे जो ऐसी, ये आवे છે समझ नाचक में आता है। समझे? मैं करता मैं ऐसा किया, अब यो कहो ऐसा करूंगा ऐसा करूँ। शू भाई शू करी तो किसका करेगा तेरा? खंडे मैं करता मैं कि नहीं कैसी, कवियों कहो कहे जो ऐसी। પછી દે ભૂલી જાય શબ્દ યાદ નથી, પેલા બહુ વાંચતા ને યાદ સંપ્રદાય વાંચતા સમય સંદાતે તો। हाँ समझ में आया? નિશાની છે, હું તો બીજું જન્માઈ છું। ઘણા શબ્દો છે અંદરથી આવી જાય મગજમાંથી, સમય સંદાતે નતું કઈ। જ્ઞાની ક્રિયા કરે ફળ સોની,
लगे न लेपन निर्जरा दुनिया की कहीं तो नहीं। हाँ हाँ, मुंड कर्म को करता होवे, फल अभिलाष फले जो जोवे, ज्ञानी क्रिया करे फल सुनी, राग आते हैं जानते हैं, मैं नहीं हमारी चीज नहीं। लगे न लेप निर्जरा दुनी, दुनी से गंदनी पदनी आ रही मेलवा में टिके असंगों में निजरा हो जाती है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं तदात्मा संबंध नहीं, गुण गुणी संबंध नहीं। भगवान आत्मा गुणी એટલે गुण वावा અને राग उसका गुण, आत्मा गुणी અને शरीर उसका गुण, आत्मा गुणी અને कर्म उसका गुण, ऐसा है नहीं। हाँ 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 हाँ, भगवान आत्मा तो आनंद में ज्ञान उसका गुण है, ते गुण ने आत्मा गुणी तो तदात्मा संबंध है, ये गुण गुणी का भाव है। हाँ हाँ, कर्मणी साथ गुण गुणी का भाव है नहीं, है लक्ष्य लक्षण भाव, लक्षण राग ने लक्ष्य आत्मा, ऐसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ, आलापति में समझ में आया? दया नाम का विकल्प ये लक्षण और आत्मा लक्ष्य, ऐसा है नहीं। ज्ञान लक्षण ने आत्मा लक्ष्य, ऐसा है। हाँ हाँ, एम कर्म लक्षण ने आत्मा लक्ष्य, ऐसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ, लक्ष्य लक्षण भेद है। समझ में आया? दूसरा लिखा वाचक भाव, अचेतन शब्द ही वाचक है और उसका वाच्य चेतन है, ऐसा है नहीं। शक्कर बोलते हैं, शक्कर 3 अक्षर है तो उसका वाच क्या बोले? शक्कर पदार्थ। पर जहर शब्द है उसका वाच साकर है, जहर शब्द का वाच तो जहर है। एम राग वाचक है ना, आत्मा उसका वाच है, ऐसा है नहीं। समझाए क्यों समझू प्रभु? तारामा शक्ति तो अनंत गुणी अनंत है प्रभु। एक क्षण में केवल ज्ञान ले इतनी ताकत पड़ी है अंदर, एक क्षण में केवल ज्ञान। हा 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 हा, परमात्मा થઈ જાય પ્રભુ તું એટલો છો પણ તેરી પ્રતિ તેરે ને વિશ્વાસ નહીં, બહાર ની વિશ્વાસ આવે। આ શું તમારે કહેવાય? ક્યુનાન થોડી લેતા મટી જશે એનો વિશ્વાસ। ક્યુનાન કેતો ને લેતા મટી જાય એનો વિશ્વાસ, એનો બીજી રીતે લઈએ રોટલો કોઈ અહીં કઈ હલવાઈ જશે એ નથી એને શંકા પડતી, નિશંક ક્યાં લઈએ છીએ અંદર બરાબર ભાઈ જશે। હવે અંદર જોયું નથી ક્યાં જાય છે શું જાય છે। હોળીઓ લીધા ને આહાર આહાર અહીંયા ક્યાં જાય છે ને કેમ જાય છે એની નિશંક છે કે તો નીચે જાય છે ને બરાબર પચી જશે, પણ આ કાણું નાનું છે ને મોટું પડે છે આટલો લોચો આટલો અંદર હલવાઈ જશે કે નહીં। करने लायक क्या नहीं, नहीं करने लायक करके 84 लाख योनि में रूलत है। समझ में आया? वाचक है ना, विशेष विशेषण भाव, विशेष विशेषण क्या कहते हैं कि विशेष आत्मा न विशेषण राग, ऐसा भी है नहीं। विशेष विशेषण कहते हैं ना, जब द्रव्य विशेष है तो गुण उसका विशेषण है। आत्मा द्रव्य है, वस्तु वो विशेष है, અને विशेषण એટલે ज्ञान गुण विशेषण है, उससे जान में। ऐसे आत्मा विशेष है और राग गुण विशेषण है, ऐसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? इतनी उतार दीजिए आलापत्ति में। हाँ, संबंध नहीं है ना, सत्यान संबंध दिया है, आलापत्ति है ना, बहुत। हाँ हाँ, विशेष विशेषण, भगवान आत्मा विशेष है ना, उसका विशेषण क्या कि ज्ञान दर्शन आनंद ये इसका विशेषण है। जानन देखन आनंद ये विशेषण है और विशेष आत्मा है। ऐसे आत्मा विशेष है, राग विशेषण है, ऐसा है नहीं।
हाँ 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 हाँ, समझ में आते सूक्ष्म है थोड़ा फरक तो कहते हैं बहु हाँ तो आज तो संसार उठलाई नाखो भाई अनंत काल परिभ्रमण ये कई साधारण बात है। हाँ 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 नवमी ग्रेक जैन साधु थईने गयो अनंत वार छता सम्यक दर्शन क्या चीज है इसकी खबर नहीं है। हाँ हजारों रानी छोड़ी हजारों रानी राजपाट छोड़ा कुटुंब छोड़ी एकलिया जंगल में रहा पंच महाव्रत लिया पर आत्मा आनंद कर्ण प्रभु है राग से भिन्न ऐसा अनुभव नहीं किया। हाँ यहाँ सत्ता बुद्धि क्या रहेगी। हाँ 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 विशेष कहेगा वचन गुरुदेव। તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। કળશ 201 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, તેનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું।